तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friends, मेरे प्रिय मित्रों, it's a joy to welcome you to today's prayer. आज की प्रार्थना में आपका स्वागत करना एक आनंद की बात है, As we have united our hearts together, क्योंकि हमने अपने हृदयों को एक साथ एकत्रित किया है the Lord is also ready to hear our prayers. और प्रभु भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर है. Don't be afraid. कदापि न डरें. The Bible says, perfect love casts out all fear. बाइबल कहती है कि प्रेम हर प्रकार के भय को दूर कर देता है. Jesus really loves you. यीशु सचमुच आपसे प्रेम करते हैं. He wants to help you. वो आपकी सहायता करना चाहते हैं. You just trust Him and say, Lord, I know you love me and you will answer my prayers now. मैं जानता हूँ आप मुझसे प्रेम करते हैं और अब आप मेरी प्रार्थना का जवाब देंगे. As you say it, जब आप ऐसा कहेंगे, fear will leave you right now. इसी समय भय आपसे दूर चला जाएगा And His power will come upon you as you pray unto Jesus. और उसकी सामर्थ आपके ऊपर आएगी जब आप यीशु से प्रार्थना करेंगे. Believe that Jesus loves you and you will see the glory of God. विश्वास करें कि यीशु आपसे प्रेम करता है और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. आइए अब हम अजमेर प्रार्थना महोत्सव में The God of all comfort is coming into you tonight. जीवन में परिपूर्ण आशीषों की प्राप्ति के ऊपर दिए गए संदेश के He wants to transform you yourself into the image of और Jesus. वो आपको यीशु के रूप में परिवर्तित करना चाहता है. एक भाग को सुनकर अपने जीवनों में आशीषें प्राप्त करें. Tonight, आज की रात the Holy Spirit told me that He is going to send His comforting Spirit upon you. और उस पवित्र आत्मा ने कहा मुझसे कि वो पवित्र आत्मा का तसल्ली आपको देगा. God's comforting Spirit. और परमेश्वर की वो आत्मा जो तसल्ली पहुंचाती है. If you read John 16 verse 19 and 20, योहन्ना की इंजील उसके 16वें अध्याय उसके 19 और 20 वचन को पढ़ें. Jesus told His disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, in a short while you will not see me. कुछ समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे. You will not be able to see me in a short while. और कुछ समय के बाद मुझे नहीं देखोगे. You will cry. और तुम पुकारोगे. You will lament. और तुम विलाप करोगे. You will miss me. और तुम मुझे महसूस करोगे मैं चला गया. But then लेकिन you will see me again. तुम फिर से मुझे देखोगे. You will see me तुम again. मुझे फिर से देखोगे. I will come to you again. मैं तुम्हारे पास फिर से आऊंगा. Then your sorrow will turn into joy. और तुम्हारा फिर शोक आनंद में बदल Your जाएगा. sorrow will turn into joy. और तुम्हारा शोक आनंद में बदल My जाएगा. friends, मेरे दोस्त, sit in the presence of our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम ऐसे ही बैठे रहते हैं. Enjoy His presence. उसकी उपस्थिति का आनंद Get उठाते His हैं. miracles. उसके चमत्कारों को And लेते be हैं happy with Him. और उसके साथ खुश रहते हैं. And then your sorrow will turn into joy. और तब तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा. Today, my friends, आज मेरे दोस्त, Jesus is coming to us यीशु हमारे पास आ रहा है to turn our sorrows into joy. हमारे शोक को आनंद में बदल How देगा. many of you are happy? Would you clap your hands and give Jesus all the glory? ताली बजा के यीशु को अपना आनंद प्रदर्शित When करें. Jesus comes, यीशु मसीह all our sorrows turn into joy. हमारे सारे शोक आनंद में बदल जाएगा. Joy. आनंद. Will you all shout joy? आनंद बोलें. Amen. आनंद. Amen. Praise God. Praise God. When Jesus comes, यीशु मसीह, Jesus said,
यीशु ने कहा, My disciples, मेरे चेलों, I have been with you for 3.5 years. मैं तुम्हारे साथ 3.5 साल रहा। Physically, you have seen me. शरीर में तुमने मुझे देखा, But now I have to go to the Father. लेकिन अब मुझे मेरे बाप के पास जाना It है। is good for you that I go away. ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं चला जाऊं, Because क्योंकि when I go, जब मैं जाऊंगा the Comforter will come back. तो वो सहायक The आएगा, Comforter will come to you. वो सहायक तुम्हारे पास The आएगा, one who comforts you. जो तुम्हें तसल्ली The देगा। God of all comfort. वो परमेश्वर जो तसल्ली देने वाला है, He will come to you. वो तुम्हारे पास आएगा। Or rather, और He said, you will see me again, not in the human physical form, but you will see me again as the Comforter. और जब तुम मुझे दोबारा देखोगे, वो इस रूप में नहीं, लेकिन तुम मुझे एक सहायक के रूप में, तसल्ली के I देने am वाले के going रूप में back with देखोगे। my glorified body to the Father. और मैं पिता से अपनी महिमा युक्त देह को लूंगा, But I will come back in the form of a spirit लेकिन as the Comforter. वहां से जब मैं लौटूंगा, पवित्र आत्मा जो तुम्हें सहायता या तसल्ली देगी, उसके रूप में I will आऊंगा। come back as the Holy Spirit. मैं वापस आऊंगा पवित्र आत्मा के रूप में। According to 2 Corinthians 3:17, दूसरा कोरिन्थियों 3:17 के the मुताबिक Bible says the Lord is that Spirit. और वहां लिखा है, प्रभु यीशु वो पवित्र The आत्मा Lord है। is that Spirit. प्रभु वो आत्मा है। He said, I will come back और उसने कहा, मैं वापस as आऊंगा the Spirit of God, और पवित्र आत्मा, and I will comfort you. और मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, I will not leave you as orphans. और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you, my children, as orphans. मेरे बच्चों में तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will come to comfort you. मैं तुम्हें तसल्ली देने आऊंगा। Tonight there is hope for you. आज आपके लिए आशा The है, God of all comfort is coming into you tonight. और वो जो तसल्ली का देने वाला खुदा आपके पास, He'll fill you with His Holy वो Spirit. उसके पवित्र आत्मा से आपको भर God the देगा। Spirit will fill you today, परमेश्वर आत्मा आपको भर देगा, and the divine comfort will fill you. और वो दैविक तसल्ली आप में भर जाएगी, And then you will have only joy. और उसके बाद आपको सिर्फ आनंद मिलेगा, All your sorrow will turn into joy. और सारे दुख बदल के आनंद में हो जाएंगे। Let not your heart be troubled. तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। Tonight is going to be the night of the women. और आज की रात महिलाओं की रात। I'm going to talk about 3 women tonight. आज मैं 3 महिलाओं के बारे में बोलूंगा। There were 3 Marys whom Jesus comforted when He was in this world. और बाइबल में 3 मरियम का नाम आता है जिनको यीशु ने तसल्ली दी। First was the mother of Jesus. और पहली थी यीशु की माँ, Mary, the mother of Jesus. मरियम यीशु की जो माँ। If you read Luke chapter 1 and verse 26, अगर लूका की इंजील उसके 1:26 को पढ़ें, God sends a wonderful report about the Virgin Mary. और परमेश्वर उस कुंवारी मरियम के विषय में एक अच्छी गवाही An देता है। angel of God came to Virgin Mary, और परमेश्वर का एक दूत उस महिला के पास आए, कुंवारी मरियम के पास, and the angel said, और उस स्वर्गदूत ने कहा, Mary, मरियम, you are greatly beloved of the तू Lord. परमेश्वर की तरफ से बहुत प्रेमित है, You are greatly favored, और तुझ पे बड़ा अनुग्रह हुआ highly है, favored one. और तेरे पे सब अनुकंपा हुई The है। Lord is with you, Mary. और मरियम, प्रभु परमेश्वर तेरे साथ है, You are blessed among women. और सारी महिलाओं में तू सबसे मुबारक है। Wonderful report. और कितनी अच्छी खबर है। Mary was troubled. What sort of greeting is this? मरियम घबरा गई, कहने लगी, इस किस्म का अभिनंदन कैसे ये The angel स्वर्गदूत? said sweet things. और ये स्वर्गदूत ये लाता है। God had sweet words through the angel for Mary. और मरियम के लिए परमेश्वर ने इतने मनोहर शब्द भेजे। But then लेकिन the angel said, और स्वर्गदूत ने कहा, Mary, मरियम, God wants your womb. अब परमेश्वर तेरी कोख चाहता है। God wants your womb. परमेश्वर तेरी कोख चाहता है। You will conceive in your womb and shall bring forth a son, Mary, और तेरे गर्भ में एक बेटा होगा और तू गर्भवती होगी, and shall call him Jesus. और उसका नाम यीशु रखना, He will be called as the Son of the Highest. और वो महाप्रतापी का बेटा कहलाएगा। The angel conveyed the great greetings of God to Mary. और उस स्वर्गदूत ने परमेश्वर के उस महा अभिनंदन को मरियम को He दिया। said, you are the most favored person amongst every woman
to God. और परमेश्वर के सन्मुख में सारी महिलाओं से तू ज्यादा मुबारक है। But then Mary, लेकिन मरियम, God wants your womb. लेकिन तेरी कोख को परमेश्वर God चाहता wants your virgin womb है और तेरी कुंवारी कोख को चाहता है to plant His Son in your womb. कि वो अपने पुत्र को तेरी कोख में दे। How it would have troubled the heart of Mary. मरियम का दिल कितना घबरा गया होगा She would have thought for a moment, और उसने शायद सोचा होगा, when this happens, अगर जब ये होगा, when I conceive Or and have a son in my womb without getting married to a man in the world, what will the world say? और जब मैं गर्भ धारण करूंगी और ये बच्चा मेरे पेट में बढ़ने लगेगा, तो दुनिया के लोग इसको देख के क्या कहेंगे? Without a human interaction, if I conceive and have a son in my womb, what will the world say? और बिना किसी पति के आदमी के अगर मेरे गर्भ ठहरेगा और बच्चा बढ़ने लगेगा, तो दुनिया क्या कहेगी? What will the law और, say? और व्यवस्था क्या कहेगी? What will the people who enforce the law say? और जो नियमों को बनाते हैं वो लोग अधिकारी क्या कहेंगे? They may not understand that I have conceived by the power of God. और वो उसको शायद नहीं समझेंगे कि मैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा गर्भवती हुई। In the natural sense, they may suspect me. और स्वाभाविक रूप में मुझ पे शायद शक करेंगे। And for a person to conceive without human wedlock is sin. और जो बिना शादी के किसी के गर्भ ठहर जाए तो वो पाप है। And they would stone me. और वो मुझे पत्थरों से मार देंगे, They would kill me, मुझे जान से मार देंगे, saying you are a curse to the entire community. और तू हमारे समाज के लिए श्रापित औरत है। Only if you die, और- the sin will leave the community. The curse will not affect us. और हमारे समाज में से पाप को दूर करने के लिए हम तुझे मार के तेरी हत्या कर देंगे। Her heart was troubled, उसका दिल घबराने लगा thinking about the consequences of giving her womb to God. और वो कि अगर अपने परमेश्वर को वो अपनी कोख दे देगी तो उसका क्या परिणाम होगा। The angel was waiting. और सुरदूत ठहर गया The angel was waiting. और सुरदूत रुका। Mary, मरियम, you are a highly favored woman. और तेरे ऊपर बड़ा अनुकंपा हुई है You will be a favored woman to God if you give your womb totally to God. और परमेश्वर को अगर अपनी कोख दे देगी तो तेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हुई है। Without giving your womb to the world, if you give your womb to God, then you will be a highly favored woman. अगर तेरे कोख को तू दुनिया के लिए या किसी इंसान के लिए देने के बजाय परमेश्वर को देगी तो सबसे महान Then होगी। God's will shall be perfected in your life and through your life to the world. और दुनिया के लिए परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा तुझ में और तेरे द्वारा पूरी होगी। God wants you to be a virgin. और परमेश्वर चाहता है कि तू एक कुंवारी As हो a virgin, give your womb to Him. और एक कुंवारी के रूप में तेरी कोख मुझे दे दे। Then God's will be perfected through you. और तेरे द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूर्ण One होगी। side the angel was saying अब this. बाहर से स्वर्गदूत ये कह रहा The था other side, the consequences that you would have to face in the world was troubling और her. दूसरी तरफ दुनिया क्या कहेगी और उसका परिणाम क्या होगा वो सोच रही थी। But in the midst of that, उसके बीच में she said, I would rather trust God, और उसने कहा इससे बढ़ के ये होगा मैं परमेश्वर में भरोसा करूंगी, even if He slays me, अगर वो मुझे मारे भी yet I will trust Him. मैं उस पे भरोसा करूंगा। I will trust God. मैं परमेश्वर पे भरोसा I will करूंगी। not be worried what the world says. चाहे दुनिया कुछ भी कहे उसकी परवाह नहीं। I will not be troubled over what would happen to me in the world. इस दुनिया में मेरा क्या होगा मुझे उसकी परवाह नहीं। The one who has called me is faithful. जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है He will keep me to the end. और वो मुझे अंत के समय तक बचाए And she रहेगा। said, और उसने ये कहा let God's will be done. परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। Behold, I am the handmaiden of God. उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूँ I surrender my womb and my life to God. और मैं परमेश्वर को अपनी कोख और अपना जीवन दे देती I am not worried about what the world would say and world would do. और दुनिया क्या कुछ भी कहे या करे मुझे उसकी परवाह नहीं। I surrender myself to God. मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर As देती a virgin, I surrender my womb to God. और एक कुंवारी स्त्री के रूप में मैं अपनी कोख को परमेश्वर को देती। God's power came.
परमेश्वर की सामर्थ्य God's उतर आई, comfort came. परमेश्वर की तसल्ली उतर The आई। Holy Spirit came upon this Virgin Mary, इस कुंवारी मरियम पे पवित्र आत्मा उतर आया and she conceived, और उसने गर्भ धारण कर and लिया she brought forth God in flesh. और शरीर के रूप में परमेश्वर को पैदा कर दिया। She brought forth God into the world. इस दुनिया के अंदर परमेश्वर आ गया How much God honored her. और परमेश्वर ने उसको कितना बड़ा आदर दिया। But it is a battle. और ये एक नमूना है Denying the flesh. अपने शरीर का इनकार, Denying what the world would say. दुनिया जो भी कहे उसका इनकार, Denying what the world would bring. और दुनिया कुछ भी लेकर के आए उसकी परवाह ना करें, Trusting God. लेकिन परमेश्वर पे भरोसा। She never bothered that the community would excommunicate her. उसको इसकी परवाह नहीं थी कि समाज बहिष्कार कर देगा। She said, in God I trust. उसने कहा परमेश्वर पे मैं भरोसा I रखती हूँ, give myself totally to you. मैं पूरे रूप से तुझे अपना दे देती हूँ। She surrendered her womb to God. उसने अपनी पेट को, अपनी कोख को खुदा को दे That दिया। is what God expects from every one of us, my आप में friends. से हर एक से परमेश्वर ये चाहता आज। The Bible says in Romans 12:1, रोमियो के 12:1 में बाइबल में लिखा है, brethren, मेरे भाइयों sisters, बहनों, by the mercies of God, परमेश्वर की करुणा को याद रखते हुए present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is a reasonable service to God. अपनी देह को जीवित भावता और पवित्र बलिदान करके यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है, Which is a reasonable sacrifice. और वही तुम्हारे लिए एक भेंट है या बलिदान है परमेश्वर को। My friends, मेरे दोस्तों, God wants us to sacrifice our bodies to Him as a living sacrifice. परमेश्वर चाहता है कि हमारी देह को जीवित बलिदान परमेश्वर को चढ़ा दें। As Mary was not worried about the world, और जब मरियम को इस दुनिया की परवाह नहीं हुई, she was not worried what others would say. उसने इसकी भी परवाह नहीं कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। Though fear tormented her, चाहे उसके अंदर डर था जो उसे सता रहा था, yet she said, लेकिन फिर भी उसने कहा, first I am the handmaiden of God. और उसने कहा मैं परमेश्वर की एक दासी हूँ। And God's comfort came upon her. परमेश्वर की तसल्ली उसके पास आ She गई। became the most favored person to God. परमेश्वर की तरफ से एक सबसे ज्यादा उसके ऊपर परमेश्वर ने दया की। And even today the whole world honors her. आज भी सारी दुनिया उसका आदर करती है। Though she had many children, उसके बाद उसके कई बच्चे हुए, yet she is called as Virgin Mary. लेकिन फिर भी वो कुंवारी मरियम माँ कहलाती है, Because her spirit was a virgin spirit. क्योंकि उसकी आत्मा जो एक बिल्कुल पवित्र कुंवारी थी, Perfect before और God. परमेश्वर के लिए पूर्ण सिद्ध, Perfect before man. मनुष्य के सामने बिल्कुल सिद्ध। Today, my friends, आज मेरे दोस्त, as you submit your bodies as a living sacrifice to God, परमेश्वर के लिए जब अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाते हैं, God's comfort will come to you. परमेश्वर की तसल्ली आपके पास आएगी। Jesus will be formed within you. यीशु आपके अंदर अपने आप को बना देगा। My friend, I'm ready to pray for you right now. मेरे मित्रों, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूँ। Just turn your heart to Jesus. बस अपना हृदय प्रभु यीशु की ओर खोल दें। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। Father, पिताजी, I pray that you will be pleased to bless your children who are praying with me. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो आपकी संतान मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हें आशीष देने के लिए खुश होंगे। I see that there are many people who have had losses after losses in their lives, Lord. मैं देख रहा हूँ प्रभु जी कि अनेक लोग हैं जिनने अपने जीवन में एक के बाद एक हानियों को उठाया है, And God is sending back everything that you have lost. और परमेश्वर हर एक चीज जो आपने खोया है आपको वापस लौटा रहे हैं। Receive the touch of God in Jesus' name. यीशु के नाम में परमेश्वर की स्पर्श को अभी महसूस करें। Father, पिताजी, please lay your hands upon your children. अपने हाथों को अपने संतानों के ऊपर रखें। Fill them with your mighty Holy Spirit. अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा से उनको भर दें। Let every fear leave their spirits now in Jesus' name. हर एक भय उनकी आत्माओं से यीशु के नाम से अभी उन्हें छोड़कर चला जाए। Let every fear go. हर एक भय जाता रहे, Let it go in Jesus' name. वो यीशु के नाम से चला जाए। Lord, embrace them, प्रभु जी, आप उन्हें आलिंगन करें, kiss them, उन्हें चुम्बन दें and bless them. और उन्हें आशीष दें। In Jesus' name.
यीशु के नाम में Let everything that they have lost come back to them. जो कुछ भी उन्हें खोया है वो वापस उनके पास आ जाए Let them have everything in double measure. और सब कुछ वो दुगना प्राप्त करें। Lord, प्रभु जी, let this day be a blessed day for your children. आज का दिन आपके बच्चों के लिए एक आशीषमय दिन हो। Let your peace prevail. आपकी शांति जो उन पर राजी करे, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।